آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ایک ایسا موضوع جو انسان کو نہ جانے کب سے اپنی طرف کھینچتا رہا ہے، کبھی تجسس سے تو کبھی شاید خوف سے۔ ہم بات کر رہے ہیں جادو کی تاریخ کی، اور اس کے لیے ہمارے پاس حکیم قاری محمد یونس شاہد میوں کی کتاب جادو کی تاریخ کے کچھ اقتباسات ہیں۔ ان کا ہم جائزہ لیں گے۔ جی بالکل، اور ان اقتباسات کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ اچھا اس کتاب کے مطابق مختلف تہذیبوں میں مختلف وقتوں میں جادو کو کیسے دیکھا گیا، اس کی کون سی قسمیں بیان ہوئیں، اور یہ جو علم اور عقیدہ ہے اس کے ساتھ جادو کا کیا رشتہ بتایا گیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کتاب سے جو اہم نکات ہیں اور کچھ حیران کرنے والی باتیں ہیں وہ سامنے لائی جائیں، تاکہ اس کافی پیچیدہ موضوع کا ایک واضح سا خاکہ بن سکے جیسا مصنف نے پیش کیا ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو کتاب کہتی ہے کہ جادو کی جڑیں بہت بہت گہری ہیں۔ مطلب یہ بتانا مشکل ہے کہ شروع کب ہوا۔ کہا گیا ہے کہ اس کے نشانات تو قدیم ترین انسانی معاشروں میں ملتے، یہاں تک کہ غاروں میں جو تصویریں بنی ہیں یا پتھروں پہ جو نقش ہے ان میں بھی۔ جی، اور ذرائع خاص طور پر قدیم میسوپوٹامیہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی بابل، اکاد، اشور، کلدان، اور ساتھ میں مصری تہذیب۔ یہ بڑے مراکز تھے۔ بابل کا تعلق تو اب دیکھیں تقریباً 2300 قبل مسیح سے جوڑا گیا ہے۔ اچھا، اور ان تہذیبوں میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ جادو، مذہب اور جو اس وقت کے علوم تھے وہ آپس میں ملے جلے نظر آتے ہیں۔ اس کے ثبوت بھی ملے ہیں، جو آشوری، سمیری، اکادی اور بابلی آثار سے تحریریں ملی ہیں، ان میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ بات تو بڑی دلچسپ ہے کہ ہمورابی جو تقریباً 1792 سے 1750 قبل مسیح تک تھے، ان کے مشہور قوانین میں بھی جادو کا ذکر ہے۔ مطلب یہ صرف لوگوں کا وہم نہیں تھا، باقاعدہ قانون کا حصہ تھا۔ جی ہاں، کتاب تو یہی بتاتی ہے۔ حمورابی کے قانون میں آپ دیکھیں صحت اور علاج کے ضابطوں کے ساتھ ساتھ سحر یعنی جادو، اس سے متعلق بھی قانون تھے، اور جو عاملین تھے یعنی جادو کرنے والے، ان کی ایک قانونی حیثیت وہ بھی متعین تھی۔ اچھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جادو کو اس معاشرے میں ایک طرح کی حقیقت مانا جاتا تھا جسے قابو میں رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح وہ جو درا اعظم کا بہستون کتبہ ہے، اس سے بھی پرانی تحریروں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑی چٹان پر کندہ کیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں پڑھ سکیں۔ حالانکہ ان پرانی زبانوں کو سمجھنا خود ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جیسے وہ ہنری راولنسن نے 19ویں صدی میں اسے ڈیکوڈ کرنے میں کتنی محنت کی۔ صحیح۔ اچھا، قدیم بابل اور میسوپوٹیمیا سے اگر ہم آگے بڑھیں تو مصری تہذیب میں جادو کا کیا کردار بتایا گیا ہے؟ وہاں کیا خاص بات تھی؟ مصر میں تو کتاب کہتی ہے جادو کا بہت گہرا عمل دخل تھا۔ مذہبی رسومات میں جانوروں کو استعمال کر کے، مختلف چیزوں کو استعمال کر کے جادو کیا جاتا تھا۔ وہ جو پیپرس ہوتا تھا، ایک خاص قسم کا کاغذ، جی، اس پر لکھی ہوئی بہت سی تحریریں ملی ہیں، خاص طور پر یونانی مصری دور کی، یعنی 4 صدی قبل مسیح سے 1 صدی عیسوی تک کی۔ ان میں جادوئی عملیات کا ذکر ہے۔ کتاب میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ شاید اچھے مقاصد کے لیے سفید جادو اور برے کاموں کے لیے کالا جادو کا تصور موجود تھا۔ اور بابل کے حوالے سے آپ نے کلدانیوں کا بھی ذکر کیا تھا۔ ان کا علم نجوم سے کیا خاص تعلق بتایا گیا ہے؟ کلدانی جو تھے وہ دریائے دجلہ اور فرات کے جنوبی علاقے میں رہتے تھے۔ کتاب کہتی ہے کہ ان کا تعلق علم نجوم اور سحر یعنی جادوگری اس سے بہت گہرا تھا۔ وہ جو مشہور بابلی حکمران تھا بخت نصر، اس کا تعلق بھی اسی کلدانی سلطنت سے تھا، جو تقریباً 625 سے 539 قبل مسیح تک رہی۔ کتاب میں انبیاء کرام اور جادو کے ٹکراؤ کا بھی حوالہ ہے۔ کون سے واقعات اہم ہیں؟ ہاں، کئی واقعات کا ذکر ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود کے جادوگروں کا، اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی بالکل۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس زمانے میں مصر اور بابل میں جادو کا بہت زور تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص معجزات دے کر بھیجا گیا تھا۔ ایک روایت تو یہ بھی بتاتی ہے کہ فرعون کے جادوگروں کی تعداد 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اتنی بڑی تعداد؟ جی، اور یہ بھی کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، وہ لاٹھی والا، تو فوراً ایمان لے آئے۔ اسی سلسلے میں ہاروت و ماروت کا قصہ بھی آتا ہے نا؟
किताब उसे कैसे बयान करती है? जी, हारूत और मारूत का जिक्र 2 फरिश्तों के तौर पर किया गया है। किताब के मुताबिक उन्हें बाबिल में आजमाइश के तौर पर भेजा गया था। वो लोगों को जादू सिखाते थे, मगर साथ ही ये भी कहते थे कि देखो, हम आजमाइश हैं, तुम कुफ्र ना करना। अच्छा, किताब में ये भी लिखा है कि बनी इसराइल ने उनसे जादू सीखा और बाद में कुछ लोगों ने गलत तौर पर इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया। हालांकि कुरान वाज़ेह करता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया था। और वो सामरी और बछड़े वाला वाक्या, क्या किताब उसे भी जादू से जोड़ती है? किताब के मुताबिक हाँ, सामरी ने सोने का एक बछड़ा बनाया था जिससे आवाज आती थी, और कहा यह जाता है कि उसने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की मिट्टी इस्तेमाल की। इस फितने से बहुत से बनी इसराइल गुमराह हो गए। अच्छा। मशहूर तबीब और फलसफी इब्ने सीना का कौल भी नकल किया गया है कि शायद ये उस मिट्टी की कोई खास तासीर थी। अंबिया के किस्सों के अलावा किताब दूसरे ग्रोहों के बारे में क्या बताती है, जैसे साबी थे या जुरतश्ती? साबियों का जिक्र एक ऐसे कदीम ग्रोह के तौर पर है जो बुनियादी तौर पर सितारा परस्त थे। किताब में उनके मुख्तलिफ हैकलों यानी इबादत गाहों का जिक्र मिलता है। जैसे एक हैकल था उल्ते अव्वल के लिए, यानी कायनात की जो पहली वजह है उसके लिए वक्फ था। अच्छा। जरतुश्तियों के हवाले से उनके मैगी कबीले का जिक्र है। ये लोग मजहबी रुस्मात अदा करते थे और ये ख्याल जाहिर किया गया है कि अंग्रेजी का लफ्ज मैजिक शायद इसी मैगी से निकला है। ये तो दिलचस्प ताल्लुक है। जी, और बुद्धमत के बारे में भी ज़िमनी तौर पर जिक्र आता है कि वक्त के साथ साथ उसमें भी तोहम परस्ती और सहर के कुछ अनासिर शामिल हो गए थे। अब अगर हम जादू की अक़साम की बात करें तो किताब में सफेद और काले जादू का फर्क कैसे बताया गया है? बुनियादी फर्क तो नियत और मकसद का बताया गया है। सफेद जादू अच्छे मकासद के लिए और काला जादू बुरे मकासद के लिए। काले जादू के बारे में एक दिलचस्प बात ये लिखी है कि ये अक्सर रात के वक्त अंधेरे कमरों में किया जाता है। अंधेरे में क्यों? किताब के मुताबिक एक तस्वुर ये है कि जो बुरी रूहें या शैतानी कुव्वतें हैं वो अंधेरा पसंद करती हैं। अच्छा। और इल्मुन नजूम यानी एस्ट्रोलॉजी, जी उसका तो काफी तफसीली जिक्र लगता है। किताब इसे कैसे देखती है? जी, इल्म नुजूम को तो कदीम तरीन उलूम में शुमार किया गया है। इसमें दावा यह किया जाता है कि सूरज, चांद, सितारों की हरकत से ज़मीनी वाक़यात और इंसानी ज़िंदगी पर असरात मालूम किए जा सकते हैं। किताब इसे ज़्यादातर विजदान यानी इंट्यूशन या क़यास आराई पर मबनी करार देती है। सही। इसमें मुख्तलिफ बुर्ज का जिक्र है, यानी आसमान के वो 12 हिस्से जिनसे हम वाकिफ हैं, हमल, थौर, जौज़ा वगैरह। जी हाँ, ज़ोडिएक साइंस। बिल्कुल। उन्हें फिर आग, पानी, हवा, मिट्टी जैसे अनासिर से जोड़ा गया है। उनकी खुसूसियात बयान की गई हैं। एक अमरीकी सर्वे का भी हवाला है 1984 का, जिसमें 55% लोगों ने इल्म नुजूम पर किसी न किसी हद तक यकीन जाहिर किया। 55%? ये तो काफी ज्यादा है। अच्छा, इसी ज़िम्न में अबू मुहश्शर बल्खी का नाम भी आया है। उनकी क्या अहमियत बताई गई है? अबू माशर बल्खी, पैदाइश 787 ईस्वी, ये एक बहुत मशहूर मुसलमान माहिर नजूम थे। उनकी ख़ास बात ये बताई गई है कि उन्होंने अपने ज़माने की जो मुख्तलिफ नजूमी रिवायात थीं, यूनानी, हिंदुस्तानी, ईरानी, मिस्री, उन सब को अपने काम में इकट्ठा किया। उनकी किताब अल-मदखलुल कबीर का जिक्र है, जो इल्म नुजूम पर एक अहम किताब मानी जाती है। और जिन्नात, उनका क्या किरदार बताया गया है जादू के हवाले से? किताब में इस्लामी अकायद के मुताबिक जिन्नात का जिक्र है। आग से बनी एक गैर मरी मखलूक। उनकी मुख्तलिफ किस्में हैं, वो खाते पीते हैं, उनमें नस्ल का सिलसिला भी चलता है और इंसानों की तरह उनमें भी अच्छे, बुरे, मूमिन, काफिर होते हैं। अच्छा। उनका ठिकाना आमतौर पर वीरान जगह बताई गई हैं। और ये भी जिक्र है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसो जिन दोनों के लिए नबी बनाकर भेजे गए। बाजुकात जादू टोने में जिन्नात से मदद लेने का तस्वुर भी पाया जाता है। किताब इस तरफ भी इशारा करती है। एक तरफ तो ये सारी तफसीलात हैं जादू पर यकीन की, उसके तरीकों की, लेकिन क्या किताब इस पर शुकूक व शुबहात या अक्ली एतराज़ात का भी जिक्र करती है? जी बिल्कुल। जहां मुख्तलिफ तहजीबों में पुख्ता यकीन का जिक्र है, वहीं ये नुक्ता भी उठाया गया है कि साइंसी और अक्ली नुक्ते नज़र से जादुई अमल और उसके नतीजे के दरमियान
कोई तजुर्बाती ताल्लुक यानी एम्पेरिकली साबित नहीं किया जा सकता। यानी मुशाहिदे से साबित नहीं होता। जी, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि फलां मंत्र पढ़ने से लाजमन बारिश होगी या फलां अमल से कोई बीमार हो जाएगा। किताब में ये भी कहा गया है कि अमूमन जैसे जैसे तालीम और टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जादू पर यकीन कम होता जाता है। अच्छा, अहले कश्फ का क्या जाविया नजर बताया गया है? यानी जो रूहानी तौर पर साहिब बसीरत लोग होते हैं। उनके हवाले से किताब कहती है कि वो हर उस अमल को सहर कह सकते हैं जिसके असबाब छुपे हुए हों, आम आदमी की समझ या पहुंच से बाहर हों। ये बात भी दिलचस्प लगी कि किताब कहती है जादू या अमलियात में कामयाबी के लिए एक खास हिस्स या अंदरूनी कैफियत जरूरी है। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या चीज है? ये एक गहरा नुक्ता है। किताब में एक आप कहें दिलचस्प मुशाहिदा बयान किया गया है कि बज़ाहिर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मंतिक और दलील की दुनिया में रहते हैं, वो इस मैदान में कम कामयाब होते हैं। अच्छा, जबकि कम पढ़े लिखे या सादा लोग वो ज्यादा कामयाब नजर आते हैं। ये क्यों? किताब की रूह से इसकी वजह शायद ये है कि वो अकली शकूक व शुबहात में कम पढ़ते हैं, वो पूरे यकीन के साथ अमल करते हैं, और शायद यही यकीन इस हिस्स या कैफियत के लिए जरूरी समझा जाता है। ये यकीनन एक काबिल बहस नुक्ता है। तो इतने शुकूक व शुबहात के बावजूद और साइंसी तरक्की के बावजूद किताब के मुताबिक आज भी जादू पर यकीन क्यों बाकी है? किताब के मुताबिक ये अकायद सिर्फ माजी का किस्सा नहीं है। यूरोप में भी, अफ्रीका के कबाइल में, मुस्लिम माशरों में और जदीद मगरबी दुनिया में भी, जैसे वो अमेरिकी सर्वे का हवाला था, ये किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। तो वजह क्या हो सकती है? किताब से जो मुमकिना वजूहात समझ आती हैं, उनमें शायद इंसान का नामालूम चीज़ों से खौफ, अपनी ख्वाहिशात को जल्दी पूरा करने की तमन्ना, या बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं जिनकी बज़ाहिर कोई और साइंसी या अक़ली वजाहत नहीं मिलती। ये सब चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये निकलता है कि जादू का तसव्वुर, जैसा कि हकीम कारी मोहम्मद यूनुस शाहिद मियूं की किताब में पेश किया गया है, ये इंसानी तारीख जितना ही पुराना है और दुनिया की तकरीबन हर तहजीब में इसकी कोई ना कोई शक्ल मिलती रही है। इसका मजहब से, इल्म से, ताकत से और इंसानी नफ्सियात से एक बहुत गहरा और पेचीदा रिश्ता रहा है। जी बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे कदीम मेसोपोटामिया और मस्र से शुरू होकर अंबिया के अदवार से गुजरते हुए इस्लामी तारीख तक जादू और उससे जुड़े अकायद और आमाल ये मुख्तलिफ रंगों में नजर आते हैं। कलदानियों का इल्म नुजूम हो, मसीहों की रसूमात हो, या हारूत और मारूत का किस्सा, और साथ ही खास तौर पर जदीद दौर में अक़ली और साइंसी बुनियादों पर इन पर सवालात भी उठाए जाते रहे हैं। ये ज़राए हमें कदीम अकायद, उनसे जुड़ी रसूमात और इल्म की कुछ ऐसी शाखों जैसे इल्म नजूम, उनकी एक झलक दिखाते हैं जो आज शायद इतनी मरकजी हैसियत नहीं रखती। ये यकीन और शक के दरमियान जो एक मुसलसल कशमकश है, उसकी तरफ भी इशारा करते हैं। और सुनने वालों के लिए एक सोच शायद ये छोड़ी जा सकती है कि इन ज़राए की रोशनी में आज के दौर में इल्म, अकीदा और वो मज़ाहिर जिनकी हम पूरी तरह वजाहत नहीं कर पाते, उनके दरमियान लकीर कहाँ खींची जाए, और क्या इंसानी तारीख में ये लकीरें हमेशा एक ही जगह रही हैं, या ये वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ मुसलसल बदलती रहती हैं।